morning, students. Today we are going to discuss revision test 2, which comprised of the syllabus of statistics, right? So the first question goes, the major cause of emergence of economic problem is A, unemployment, B, inflation, C, poverty, D, scarcity. Scarcity is the major cause for the emergence of economic problem. Next, what are the functions of statistics? Which of the following? A, to simplify complex facts. It is one of the functions. Yes. To make comparison of facts. It is. To help in interpretation. All of these. Okay. Dash data is based on first-hand information. Secondary, primary, random sampling, qualitative, primary data. Then assertion reasoning questions. Assertion you are given. There are a number of national, government, semi-government, committees, commissions, etc. and international like UNO, IMF, World Bank, etc. organizations which collect statistical data in different fields and publish data on regular basis. This is an assertion. It's a fact that there are a number of government and non-government organizations which collect statistical data and publish it. Reason क्या given है? Sometimes research scholars, universities, trade unions, labor bureaus collect data but do not publish it. Such data are generally for self-use or office records. For example, reports prepared by private investigation agencies. Statement correct है कि कई बारी scholars, universities, trade unions data collect करते हैं अपने अपने पर्पस के लिए, लेकिन उसको पब्लिश नहीं कराते. लेकिन क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन बनती है? हाँ? No. So A is correct. R is also correct, but R is not the correct explanation of A. All right. Fifth question. This method involves study of each and every item of the universe. A, sample, B, random, C, primary, D, census. Census. Average profits of a company is A, discrete variable, a continuous variable, both A and B, or a qualitative phenomena. Average profits of the firm. ये कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, दोनों भी हो सकते हैं, ये क्वालिटेटिव है. क्वालिटेटिव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये नंबर्स में मेजर होता है. अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में से कैसे डिस्टिंक्शन करनी है? डिस्क्रीट वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जंप्स में बढ़ती है, जो कि मेजरेबल है, कंप्लीट यूनिट्स में मेजरेबल है. जैसे कि नंबर ऑफ रूम्स इन अ स्कूल, नंबर ऑफ डोर्स इन अ रूम, नंबर ऑफ विंडोज इन अ रूम, नंबर ऑफ गेट्स इन अ स्कूल. ये होल नंबर ही हो सकता है ना बेटे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, can there be 40.5 students? But profit can be 42,533.22, 43,566.88. Yes. So it is a discrete or continuous. You tell me now. It is a continuous variable. ठीक है? ठीक? जो जंप्स में बढ़ेगा एग्जैक्टली मेजरेबल होगा वो डिस्क्रीट. जो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, वो कंटिन्यूस. ओके. सपोज मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 60. 4 वैल्यूज आर 10, 25,
30 and 35 respectively. Find the missing value. 5 वैल्यूज हैं, फिफ्थ नहीं गिवन, उसको हम x मान लेते हैं. इन सबका मीन मतलब दिस टोटल डिवाइडेड बाय 5 इज 60. करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 35, 70, 100 plus x equal to 300. X equals 200. So 200 is the right answer. Then you had to calculate arithmetic mean. आपको सीरीज गिवन थी मोर देन फॉर्म में. मोर देन फॉर्म, ठीक है. मोर देन फॉर्म को क्या कहते हैं हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म. ऐसे गिवन मार्क्स गिवन थे आपको. मोर देन 0, 2, 4, 6, 8. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे आपको बेटे 50, 45, 30, 20. सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहला स्टेप फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं है. क्या है? क्लास इंटरवल्स. पहली क्या आएगी? लास्ट क्या आएगी? फिर एज इट इज लिख दो. क्या करना है? ये क्या है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? क्या करेंगे? फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज. लास्ट क्या है? फिर ऊपर आ जाओ. हायर माइनस लोअर वैल्यू. 5, 15, 10, 10. ऐड कर लो. 50 आता है. अब CF का कॉलम यही वाला चेप दो. काम आसान. यस. दोबारा से बनाना पड़ेगा. 5, 20, 30, 40, 50. चाहे लेस देन आए चाहे मोर देन आए, आपने दोबारा ही बनाना है. 2 कारण है उसके. एक तो आप भूल जाओगे लेस देन में दोबारा बनाना था कि मोर देन में. दूसरा, अगर लेस देन में आपने एज इट इज ही रहने दिया, आपने कहा CF तो गिवन है, तो हम वैसे CF को थर्ड कॉलम में लिखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग सारा सम करते हैं कि यहाँ ये F है, ये CF है, ऐसे करते हैं ना. तो यहाँ पे गलती हो जाएगी फिर बेटे. ये 3 कॉलम्स ऐसे रखोगे ना 1, 2, 3, तो गलती हो जाएगी. तो इसीलिए 1 मिनट लगना है आपको टोटल करने में, कोई टाइम नहीं लगना. 1 मिनट स्पेयर करो ताकि आपका आंसर गलत ना हो. ठीक है. सो जो भी इसका राइट आंसर, आई थिंक इट वाज 5.2. ठीक है. देन कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग. तो आपको वेजेस गिवन है और आपको सीरीज जो गिवन है वो इंक्लूसिव सीरीज में गिवन है और डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन है. तो हम सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको असेंडिंग वाला ही सिखाया है, हमने इसको असेंडिंग में कन्वर्ट कर लेना है. कुछ नहीं करना, हमने नीचे से लिखना शुरू कर देना है. यहाँ पे 90 to 99, 80 to 89 इस तरह से है. हमने नीचे से लिखना शुरू कर देना. 90 to 99. इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 45. सॉरी, नीचे से ही लिखनी है ये भी हमने. 15, 40, 50, 60, 45. दिस इज इंक्लूसिव डेटा. क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव. कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस माइनस दिस, L2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय 2. आपको ये याद हो गया ना? ये तो ये क्या है? लोअर लिमिट. कौन सी इंटरवल की? सेकंड. तो L2. ये क्या है? कौन सी क्लास की? तो अगर क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला करेक्शन फैक्टर का, नहीं माइंड में आ रहा, तो रफ में लिख के देख लो. 0.5 माइनस हो जाएगा 0.5,
ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने तो रफ वर्क में ही करना है, तो एक टिप आप देखो, मॉडल क्लास कौन सी है, ये यही है ना, तो ये क्या रहेगी 79.5 लोअर लिमिट, बाकी मत करो। ठीक है, टाइम सेव। चलो Z L क्या है हमारा, दिस इज F1 F0 F2। ठीक है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 इंटू I 10, क्योंकि ये भी 89.5 हो गया। ठीक है, 79.5, ये 100 हो गया, 120 में से 50 गए, 70 में से 45 गए, 25 4 83.5। कितना टाइम लगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? आपको तो पता ही नहीं, आपने किया ही नहीं, टेस्ट में भी नहीं किया होगा, ऐसे इधर उधर से चेप दिया होगा। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मीडियन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कंटिन्यूस सीरीज एक्सक्लूसिव में गिवन है आपको, तो आप इसमें CF का अरेंज्ड भी है डाटा, CF कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 नहीं होता, क्या होता है, साइज ऑफ n/2th आइटम, +1 नहीं आना, साइज ऑफ n/2th आइटम। ठीक है, फिर उसका जो आंसर आया उसको किसके साथ कंपेयर करना है, CF कॉलम में कंपेयर करना है। CF कॉलम में कंपेयर करने के बाद जो उससे नेक्स्ट हायर है, नेक्स्ट हायर ही लेना हमेशा, चाहे सेम ही आ जाए, नेक्स्ट हायर ही ले लो। ठीक है, सो उससे हमने निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, assertion रीजनिंग है। assertion, a survey which includes every item of the population is known as census method. It covers every individual unit in the entire population. It is suitable when the items in universe have diverse characteristics. True है? Reason, since census method needs less organizational skills, verification of data obtained through this method is easily possible. So errors can be easily identified and rectified and corrected. सेंसस में क्या एरर्स जल्दी आइडेंटिफाई हो सकते हैं? नहीं। सो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। सी ऑप्शन, ए ट्रू आर फॉल्स। ओके, मैचिंग है, मैं आपको ए कॉलम के पहला बोलती हूं, नॉन क्यूमुलेटिव सीरीज ऑप्शंस, ग्रुपिंग रिलेटेड फैक्ट्स into classes. B, quantitative character of an item. C, simple frequency series. D, lower limit and upper limit. हमारा ऑप्शन था ये, नॉन क्यूमुलेटिव सीरीज। ये नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है ना, क्योंकि लेस देन या मोर देन में नहीं गिवन। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ए, ग्रुपिंग रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस, क्वांटिटेटिव करेक्टर ऑफ एन आइटम, lower limit and upper limit. Organization, grouping related facts into classes. Organization में ऐसे समझाती हूँ हमेशा, कपड़े धोए, तय लगे, ठीक है, इकट्ठी पाइल बनी हुई है, उसके बाद उसको कबर्ड में ऐसे ही रख देते हैं। कंपेयर द पाइल ऑफ क्लॉथ्स विद रॉ डेटा।
How do you keep your clothes? You keep shirts with shirts, trousers with trousers, towels with towels. ऐसे ही रखते हैं ना, यानी into different classes. तो इसी तरह फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग क्लासेस में, रिलेटेड फैक्ट्स को अलग अलग क्लासेस में डाल के. ओके. थर्ड, क्लास इंटरवल. दो ऑप्शंस अब बचे हमारे पास. क्वांटिटेटिव करेक्टर ऑफ एन आइटम, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. लास्ट, वेरिएबल क्वांटिटेटिव करेक्टर ऑफ एन आइटम. ओके. केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटे, मैं पढ़ देती हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा. हिमाचल प्रदेश ऑन संडे रिपोर्टेड 11 कोविड डेथ्स and 195 positive cases, while 629 patients also recovered during the day. Now the state's overall count of cases has reached 14,191, out of which 3,657 are active cases and total 170 patients have died. The number of cured persons has gone up to 10,339. Of the latest deaths, Shimla district reported 3, Kangra and Mandi 2 each. 1 patient each succumbed in Chamba, Kullu, Sirmaur and Solan districts. The cases detected during the day included 35 each in Solan and Mand districts, 28 in Kangra, 26 in Sirmaur, 22 in Shimla, 17 Hamirpur. ये आपको सारे गिवन है, ठीक है. The district reporting recoveries were Solan की बताई हुई है, मंडी की बताई हुई है and all that. Identify the method to collect the primary data in the above news report. ये जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है न्यूज़पेपर वालों ने, कौन सा मेथड इन्होंने प्राइमरी डेटा का, उन्होंने खुद कलेक्ट किया ना, तो उनके लिए प्राइमरी डेटा था. कौन सा मेथड इन्होंने यूज किया होगा? डायरेक्ट पर्सनल, एक एक बंदे के पास गए, शिमला के, हिमाचल प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में गए, हर एक बंदे से पूछा आपको कोविड तो नहीं, ये मेथड यूज किया? नो. इनडायरेक्ट ओरल, एक लोकेलिटी के बाहर उसके प्रधान के पास चले गए, उससे पूछा आपके एरिया में कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने केस पॉजिटिव है, ये वाला मेथड पॉसिबल है? पॉसिबल है? इतना बड़ा हिमाचल प्रदेश, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, हर लोकेलिटी के प्रधान के पास चले गए, करोड़ों लोग कैसे कवर करोगे? कर पाओगे? नहीं. इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, यस, उन्होंने अपने लोकल सोर्सेस, कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज, वो उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं. रेगुलर ही आती थी ना ये, कितने केसेस अभी भी आती होगी मुझे लगता है न्यूज़पेपर में कि इस एरिया में इतने केसेस हैं, देखा कभी न्यूज़पेपर? सो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस. ओके. डैश डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, सेकेंडरी, प्राइमरी, और नो डिफरेंस इज देयर? प्राइमरी. Method of information from local sources is used when field of inquiry is small, regular and continuous information is required, maximum degree of accuracy is required, all of these. Regular and continuous information. Okay. Next, again numerical is there. Mean marks obtained by 100 students are estimated to be 80. 100 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स 80 हैं. स्टूडेंट्स n 100, मीन मार्क्स यानी x bar 80. Later on it is found that one value was misread as 86 instead of 26. Correct value क्या है? 26. Incorrect 86. Find the corrected mean. कैसे फाइंड आउट करेंगे? समेशन एक्स. समेशन एक्स क्या होता है? n into x bar
8,000, इसको कैसे करेक्ट करेंगे? इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट एंड 60 का डिफरेंस है ना, तो 60 माइनस हो गया, ये आ गया। इसको 100 से, ठीक है, डी ऑप्शन 79.4। फिर बेटे 17 क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन गिवन है आपको, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी। एक्स गिवन है, एक्स की एक वैल्यू मिसिंग है, ये एक्स का कॉलम है, ये एफ का, एक वैल्यू मिसिंग है, और अर्थमेटिक मीन गिवन है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? उसका फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे, मिसिंग वैल्यू को कुछ भी नाम दे दो, एक्स दे दो, ए दे दो, बी दे दो, जो मर्जी दे दो, इसका टोटल आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये आपको गिवन है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियन 200, मोड 250, फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। एम्पेरिकल रिलेशनशिप, मोड इक्वल्स, क्या गिवन है? मोड एंड मीडियन, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, 600 में से 250 माइनस हो गए, कितना आया? डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। Z को मोड से नहीं डिनोट किया, मोड को Z से डिनोट किया, Z से ही डिनोट करते हैं। Calculation, in calculation of simple arithmetic mean, all items of the series are given dash importance, equal importance. Okay. Last question. 2 statements are given. No. 4 statements are given. You are asked to identify incorrect statement. First, arithmetic mean is capable of further algebraic treatment. True है. If 5 is added to all the values of the series, arithmetic mean will also increase by 5. True है. Arithmetic mean is a positional average. False. It is not a positional average. It is a mathematical average. Median is unduly affected by extreme observations. ये भी false है. तो 2 statements false हैं. So right answer is 3 and 4, option D. Got it? Okay, now anyone having any doubt in any question? कौन सी? Median is unduly affected by the presence of extreme observations. समझ लो, मीन अगर लिखा होता मीन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये करेक्ट था या इनकरेक्ट था? मीन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। ये आपकी क्लास में बच्चे हैं, ये इनका टेस्ट आया, मार्क्स आए आउट ऑफ 100, 4 बच्चों का। मीन निकालो जरा, 5 बच्चे हैं, मीन निकालो। एक नया बच्चा आ गया, उसके मार्क्स आए 40। मीन निकालो, मीन निकालो। छह से डिवाइड करना है, नहीं ज्यादा आएगा। 49, 55,
70 डिवाइडेड बाय 6, हाँ तो 12 पॉइंट समथिंग, चलो 12 मान ले। मीन की वैल्यू जंप हो गई बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमा। इसका मीडियन निकालते हैं पहले, इन वैल्यूज का मीडियन, मिडल वैल्यू ये था मीडियन। अब मीडियन क्या होगा, अरेंज करना पड़ेगा, डेटा को अरेंज किया। मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n+1 ओवर 2th आइटम। कितनी आइटम्स है, 6, 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 आइटम, 1 2 3 3.5 आइटम मींस मीडियन पहले कितना था, अब कितना आया। क्या ये अफेक्ट हुआ एक्सट्रीम आइटम से, ठीक है, राइट, ओके, दैट्स ऑल।